method. Easy to prescribe the test or investigation, but always think of the profit of the client, so he can spend money or not. Help H stands for help client to make voluntary decision. तमाम चीज़ें नीमेरिट लॉजिस्टिक एवेल्यूएशन एंड कॉस्ट ऑफ द मेथड्स बताने के बाद आप उसको खुद फैसला कर लें। अगर वो बखुशी राजी मानता है कि वो तमाम चीज़ें एक्सेप्ट करता है, हमें आपने बता दिया है, तो इट्स ऑल राइट। अगर वो कहता है कि इट्स ऑल राइट, मैं बेशक इस तरीक़ाकार को इलाज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, इन्वेस्टिगेशन को तैयार हो, लेकिन मेरी जेब इजाज़त नहीं देती, तो evaluate investigation या टेस्ट about the choose of decision action and method. आपने एक्सप्लेन किया, कर दिया, अब उस मेथड के बारे में भी आपने उन्हें बता दिया है कि इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, ये कितना मेरिट। अब काउंसलिंग करने के बाद डेट इशू है, जो भी हो आप उसे फॉलो अप आना बहुत जरूरी है। Propaganda is a merely a publicity campaign Sorry, there is a problem because there is some sort of difficulties of the net. Propaganda is merely publicity campaign aimed at presenting a particular thing or concept in a favorable light in such a way that public may accept it without thinking about it accurately. अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे मैक्सिमम प्रोपेगेंडा कर रही है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और क्राउडिंग न करें। समटाइम्स ये करना पड़ता है बिकॉज unless you propaganda favorably propaganda for a certain goal, you are not even good results. So this is the one part of the propaganda about prevention of the objectives of health education and promotion. There are three types. Number one, informing people. Question here lies, information is a basic right. It is also prerequisite to proper awareness and assessment of one. आप हेल्थ एजुकेशन में और हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन में जब तक प्रॉपर और अच्छी और कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे लोगों को, टू प्रॉपर अवेयरनेस एंड असेसमेंट ऑफ द वंस ड्यूटीज एंड राइट्स, ये उनका बेसिक राइट है टू गेट प्रॉपर बेसिक इंफॉर्मेशन. सो यू हैव टू गिव complete and proper information to the people about the pandemic. इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, कितनी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, कितनी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, हमारे पास
हुकूमत पाकिस्तान के पास कितनी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है, कितने ventilators available है. So we can treat only 2000 or maximum 3000 people which can be put on ventilator. So you are not going to avail ventilators in future, so you should avoid from uh, uh, gathering and wear masks, etc. This is complete information. Health is basic right of all human beings and health information necessary. Only an informed community will aspire, work, demand and fight for its right, and that is health. अब सवाल ये पैदा होता है कि health is basic right of the human beings, whether that is state, by the state, by the NGO, by the individual, or by the family. But unluckily, governments of all governments, especially when we are talking about the basic right of the human for health, अभी कहते हैं कि तमाम मरवी ममालिक का ये पोल खुल गया है. वो जो दावा करते थे कि हमारे पास बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटीज हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ये उनके सारे राज खुल गए हैं कि इतनी फैसिलिटीज उनके पास नहीं थी. इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, दिस इज द अनलक ऑफ द ओनली वन न्यूज आर दैट देयर आर 20,000 casualties there, and this is the height of still that is going on. That is not stopped. That is not stopped. Just imagine. I was reading article कि कब्र खोदने के लिए वहाँ पे $2,000 डिमांड किए जा रहे हैं. 2,000 डिमांड. There are many dead bodies lying in the dead houses and of the different countries, and they are asking their embassies to collect them, but unluckily there is no arrangement for collecting. So this is the height. ये एक हमारे पास लम्हा फिक्री है कि हमने तमाम जोर एटम बम, एटमी असला बनाने पे, बिल्डिंगें बनाने पे, हमने अपनी तरक्की शो करने में, हमने गाड़ियां बड़ी से बड़ी बनाने में ज़ाया करते हैं. बट वो जो बार बार मैं आपको लेक्चर में कहता हूँ कि दिस इज द बदकिस्मती की इंतहा है कि ओनली 2.5 GDP ऑफ द बजट इज यूटिलाइज फॉर हेल्थ सर्विसेज, जिनमें से मोर देन 50% बजट जो एलोकेटेड होता है हेल्थ का, दैट इज यूटिलाइज फॉर सैलरीज ऑफ द health personnel, etc. And only just you can say 1.2 or 1.3 percent of the GDP is the utilized for the health of the uh, 22 billion people of Pakistan. This is the high, and same is in other countries. Same is in other countries, and same is with education. The most important departments of the country, whether that education and health, are ignored. And almost all countries, whether European countries, Western countries, America, etc., I think so, they have to revive their targets in future, and more attention will be given to the education and health sector. Same health information help people in becoming aware of their health problems, in developing proper perceptions about them, and in seeking appropriate solutions for the same. When you are giving proper information, complete information to the people, and involve them in decision making, you will get good results. This is very important. सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है मोटिवेटिंग पीपल. अब आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दी जो मैंने आपको बताई है. अब सवाल है कि यू हैव टू मोटिवेट द पीपल, टू मोटिवेट द पीपल टू मेक सर्टेन डिसीजंस, मोटिवेट द पीपल टू कम दैट पॉइंट फॉर द टू अडॉप्ट ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स. उसमें क्या करना होता है? मोर इंफॉर्मेशन इज नॉट the knowledge that tobacco and alcohol are harmful to the health
does not itself ensure that we do negate them. इस हद तक हार्म है दोनों चीजें, इस हद तक हार्मफुल है। क्या इससे होता है, क्या इससे कैंसर फैलता है, ये आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आफ्टर इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू अचीव द सेकंड ऑब्जेक्टिव, मोटिवेशन ऑफ द पीपल to adopt a certain behavior to get rid of this bloody alcohol and tobacco. This motivation must be developed in them by a process of change of behaviors as described later. For example, before people voluntarily practice family planning, they must be motivated or mentally prepared and willing to adopt the small family norm. आप उनको कॉन्सिक्वेंसेस, मेरिट एंड डिमेरिट्स सारे बताएं कि लार्ज फैमिली के नुकसान क्या है, उसमें कितने आपको बजट चाहिए, आप बीमारियों का इलाज, एजुकेशन, तमाम चीज़ें उनको बताएं। अगर उनके 2 बच्चे हैं और इनकम 1 लाख है, उनके बच्चे अच्छी तालीम भी हासिल करेंगे, उनके बच्चे अच्छा खाना पीना भी होंगे और अच्छी रिजल्ट्स भी देंगे। अगर वही 10 बच्चे होंगे तो 10 बच्चों पे उनकी एजुकेशन भी स्कैटर हो जाएगी, उनका खाना पीना भी कम हो जाएगा और रहने के लिए जगह भी प्रॉपर्ली मिल सकेगी। ये तमाम चीज़ें आप मोटिवेट करेंगे तो देन यू विल गेट रिजल्ट्स। थर्ड इज गाइडिंग इनटू एक्शन। आपने इंफॉर्मेशन दे दी, आपने मोटिवेट कर लिया। मोटिवेशन बाय इटसेल्फ डजंट ऑटोमेटिकली लीड टू एक्चुअल प्रैक्टिस। Along with motivation to drive a car, a person must have help and guidance from an instructor before he can drive freely. आपने गाड़ी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, आपने ड्राइविंग सिखाने के लिए सीट पे बिठा दिया, मोटिवेट कर दिया कि आपने ड्राइविंग सीखनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने उन्हें बताना है कि स्टार्ट पहले करनी है गाड़ी, फिर उसके बाद आपने उसको पहले गियर में डालना है, एंड जस्ट फर्स्ट गियर इज जस्ट टू स्टार्ट ए कार। Actually, you have to drive a car on second gear, and then for speeds, third gear, fourth, and fifth. ये गाइडलाइन आप देंगे और इसका एक्शन होगा तो वो इंशाल्लाह ताला जो क्लाइंट है उसको सारी चीज़ें पता चलेंगी। Many smokers, alcohol and heroin addicts are motivated to give up their habits but need appropriate guidance. अब सवाल है कि आपने इंफॉर्मेशन दी गई, what the merits and demerits of the smokers and alcoholics, आपने मोटिवेट कर लिया। अब सवाल है कि हाउ टू गेट रीड दिस ब्लडी हैबिट। उसके लिए जब तक आप गाइडलाइन नहीं देंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड। Young mothers may be motivated to breastfeed their babies, but may need guidance and support for this. Principle of health education. The challenge of health education, the word health education is very broad spectrum word. It's not so easy. Health and education. There are 2 sectors, health department and education department are combined in one word, that is health education. Or if the deep significance of this term as implicit in the real meaning of education is not understood, even well-meaning doctors and health professionals may sincerely believe they have given health education to people when in practice they have merely lectured to them. अब सवाल ये पैदा होता है कि एक डॉक्टर ने आउटडोर में मरीजों को बता दिया, अगर उस हेल्थ एजुकेशन का कोई अमली मुजाहरा नहीं हो रहा तो दैट इज यूजलेस, जस्ट अ लेक्चर, एक कान से आया और एक कान से निकाल दिया। No wonder they are surprised later when health education appears to have been ineffective. Hence, it is extremely important that every member of health team should know and understand the principles of the health
Education. The challenge of health education is that it should give correct knowledge, leading to sensible attitudes, resulting in healthy practice to bring about a real change for the better in the lives of the people. Principles of the health education. There are 13 principles in which you can impart best possible health education to the community or the people. Number one, the aim of health education is to bring about a change in health behavior. That is very important. First and the most important uh, point, that is the principle. The aim of health education is to bring about a change in health behavior. Second, health education is not an artificial teaching learning exercises. Just not only teaching point of view, you have to get results of that teaching. That is very important. Until you are not going to get results, that health education is not fruitful. Health education should involve free discussion from both sides. You should allow all the participants to ask a question and up to their entire satisfaction. जब तक आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं करेंगे, खाली बता देना और खाली ऑर्डर कर देना, दैट इज नॉट सफिशिएंट. टेल ओनली व्हाट इज नीडेड. ठीक है, थोड़ी सी तमहीद शुरू में बांधी जा सकती है, बट इट डजंट मीन दैट आप इतनी लंबी 1 घंटे की तकरीर करें और असल मुद्दा आप एंड के 2 मिनट में बताएं. आपको चाहिए असल बात को फुली हर पहलू से, हर तरीके से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप अच्छी तरह बात. डोंट गिव कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट. पहली बात तो यह है कि आपने किसी भी कल्चर और मजहब के खिलाफ बात नहीं. यूँ है जहाँ आप ये हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल लागू कर रहे हैं या जहाँ आप दे रहे हैं, you have to see and observe the culture of that community. हैदराबाद में स्टाइल और होगा, लाहौर में स्टाइल और होगा, कराची में स्टाइल और होगा. ऑल दीज आर डिफरेंट. इसी तरह अर्बन एरिया में स्टाइल और होगा, पेरिफेरी में आप चले जाएंगे और होगा. यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दिस. ट्राई टू चेंज ओनली व्हाट नीड्स टू बी. अब सवाल है, आपको अपनी माइंड सेट चेंज करना है कि आप कोरोना वायरस में प्रिवेंटिव मेजर्स करें, मास्क पहनें. अब ये नहीं है कि आप उन्हें कहें कि आप कपड़े भी चेंज करें. ये आप टेंट ना पहने, ये आप कमीज जो है उसकी जगह टी शर्ट पहने. यू शुड ओनली कंसर्न विद द चेंज, दैट इज वियरिंग मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप उनकी जूतों पे, कपड़ों पे, उनके ऐनक पे जो है वो इस तरह की राय ना दे. आप सिर्फ अपने उससे गर्ज रखें. द एजुकेटेड शुड मेक हिमसेल्फ एक्सेप्टेबल. आपका अंदाज़े बयां, आपकी गुफ्तगू इस तरह शाइस्ता होनी चाहिए कि लोग तवज्जो से सुने और आपकी बात पे गौर करें, अमल करने का सोचें, रादर कि आप उन्हें इधर उधर की बातें करके वो कहेंगे एहतकाम की गल कर रही है, इधर तो बेहतर है कि तुम use audio visual aids whenever possible. Sometimes you have to make certain time. एक दौर था जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिनेमा में फिल्म शुरू होने से पहले 5 मिनट का कोई पैगाम देना चाहती थी, फैमिली प्लानिंग हो, स्मोकिंग के खिलाफ हो, तो उसमें वो एक फिल्म बंदी दिखाते थे. आप भी यहाँ ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं. आगे जाकर हम इस चीज़ को कौन से वो मेथड्स हैं ऑडियो विजुअल के एड्स के जो यूटिलाइज किए जा सकते हैं, इन डिटेल पढ़ेंगे. चूज ए प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. अब सवाल है कि दो यू हैव द नॉलेज अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट यू हैव टू स्पीक दैट लैंग्वेज विच इज ऑफ दैट एरिया. कम्युनिकेशन मस्ट बी गुड. आपकी इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स अच्छी होनी चाहिए. हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्लान प्रॉपरली. आप पहले बैठ के प्लान करें कि आपने क्या कहना है, कि क्या आप चाहते हैं. हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन ए ग्रेडियंट. आपने स्लोली
पहले आपने तमीज़ बांधनी है, फिर आपने पहले मास्क पहनाना है, फिर आपने उसके बाद ग्लव्स पहनाना है, फिर उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे सोशल डिस्टेंसिंग लाना है। एकदम आप कह देंगे कि नमाज पढ़ने में जाएं आप, आगे से रिएक्शन शुरू हो जाएगी। आपने पहले आहिस्ता आहिस्ता उनको मोटिवेट करना है कि आपने अगर मस्जिद नहीं जाना तो उसका क्या फ़ायदा है। अल्लाह ताला आपको उतना पूरा स्वाब देंगे। Health education should put into practice the principles of community organization. That is very important. Last but not least, a practically effective health education जो है वो बहुत अहम है. Promotes action which are realistic and feasible within the constraints faced by the community. Again, I repeat, number one, promotes action which are realistic and feasible within the constraints faced by the community. Builds on ideas, concepts and practices that people already have. आप जो वो जानते हैं आप उसको कंफर्म करते हैं, उनका जो एतमाद है वो बढ़ता है कि जो हम ऑलरेडी जानते थे इसी को डॉक्टर साहब ने कंफर्म किया। रिपीट्स एंड रीइंफोर्सेस इंफॉर्मेशन ओवर टाइम यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। ऑलमोस्ट जो भी आप तरीक़ेकार बताएंगे, मतलब मास्क पहनना हर एक को पता है, ग्लव्स पहनना हर एक को पता है, किसी दूर मरीज से रहना ऑलरेडी ही नोज। देयर आर सम पीपल डूइंग ऑलरेडी दिस प्रैक्टिस कि खांसने वाले मरीज से परे होकर बैठते हैं या कह देते हैं कि यार मेरे मुंह में ना खांसो, जरा परे होकर। यूजेज एक्सिस्टिंग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज सॉन्ग्स, ड्रामास एंड स्टोरी टेलिंग एंड इज अडल्ट। वो एक मलका तरनम नूर जहाँ का गाना आता था, बहुत खूबसूरत आवाज़ में किसी शायर का लिखा हुआ कि वक्फा बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज द वे टू गिव योर मैसेजेस। एंटरटेन एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कम्युनिटी। आप अपने काम की बात भी कहते हैं और उसी माने में आप उनको एंटरटेन करते हैं। ये बच्चे जो हैं, ये सेफ गार्ड का डल्टू की कहानी जो है इस पर क्यों अमल करते हैं? उनके लाश और में वो डल्टू फंसा होता है। Uses clear, simple language with local expression and emphasizes short time benefits of action. आप आसान समझ आने वाली ज़बान इस्तेमाल करें और उनको उनके मुआशरती माहौल के मुताबिक तमाम चीज़ें बताएं। Provides opportunities for dialogue and discussion to allow learner participation and feedback about understanding and improvement. तमाम चीज़ें अच्छी तरह बताने के बाद उनकी बात सुने, उनके सवालों के जवाब दें और उनके बाद फीडबैक दें। दैट इज़ द बेस्ट वे। आपने फ़र्ज़ करें 50 लोगों के मजमे में ये बातें की हैं, आप तमाम बातें करने के बाद अच्छी तरह जब आप समझ लें कि दे हैव नाउ अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, आप उनसे जस्ट एक बहुत प्यार से तरीके से पूछें कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी बात को समझा है। आप उसका बेस्ट तरीका है कि उसको उनको रियलाइज़ करवाएं। Uses demonstrations to show the benefits of adopting practices. आप ये भी हो सकता है कि आप ऐसी डेमोस्ट्रेशन करके उनको अमली मुजाहरा करें। मसलन एक लोग आए, बंदा आए जो मास्क पहन के उसको दिखाए कि हाउ टू वियर हो, कौन सी साइड कहाँ रखनी है, कहाँ पे आपने इसको रखना है और बेसिक आइडिया कि नाक, मुंह और चिन तक जो है ना उसको आपने कवर करना है, ये आप उसको डेमोस्ट्रेट करके बताएं। ग्लव्स कहाँ तक पहनने हैं आपने, अगर जराबे बूट शूज़ पहनने या किट पहनने, हाउ टू वियर द किट, ये तमाम चीज़ें आप डेमोस्ट्रेट करके बताएं उनको। और एक नहीं, अगर आपको एक से ज़्यादा वर्क करनी पड़ती है तो आप इसको करें। Communication in health education and training. There are certain principles of communication. Though communication is an everyday happening, it is not a simple process. Even when two people are communicating, there is no surety that they fully understand each other. आप कई दफ़ा गाड़ी में बैठे हैं, आपके साथ वाला बैठा है unknown to you, but you communicate in a well way. You are talking about the staff of the bus.
you are talking about the waste, you are talking about the transport system, etc. But both are understanding, and sometimes your good friend and our student sitting in front of you, and you are talking about that, but despite this is not necessary that he is understanding your point. So communication के लिए ये the uncertainties of communication multiply when a group of people or the whole community is involved. A lot depends upon the abilities of the communicator and the way he prepares and delivers his message. अब सवाल ये पैदा होता है कि गेस्ट जो है कि जो बंदा बेहतरीन मुकर्रर नॉलेज भी उसका हो और वो अपनी बात को उनसे मनवाए और उनको समझाए, ही इज द गुड कम्युनिटी। सिर्फ कह देना लो जी मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, होता है। हमारे कॉलेज में कई लोग आते हैं, लेक्चर दे के चले जाते हैं, वो कहते हैं जी मैंने डिलीवर कर दिया, मेरी तरफ से समझ आए ना आए, आई एम लीस्ट इम्प्रूव। लेकिन कुछ लोग जो है वो अच्छी तरह एग्जाम्पल से समझाते हैं, चले ना 100% स्टूडेंट्स को समझ आए, बट मोर देन 50% अगर रियलाइजिंग दैट दे हैव अंडरस्टूड दैट इज the principles of commission below should be kept in mind by all health professionals involved in health education. वो कौन से प्रिंसिपल है? नंबर वन, the senders and receivers perception should be as close as possible. अब आपके सामने टोटली लिटरेट बंदा बैठा है एंड यू आर वेल एजुकेटेड, यू वांट टू गिव हिम मैसेज, आपने उसको एतमाद में लेके उसको क्लोज कर ताकि उसकी परसेप्शन जो है वो आपके करीब आ जाए, मसलन वो अटेंटिव हो जाए। द मैसेज शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड दैट मैसेज शुड बी सिंपल, easily understandable, accurate, to some extent adequate, that should be clear, that should be specific, and that must be significant. आपका वो एक जुमला या एक दो जुमले या एक पैरा उसको आसान जबान में बिल्कुल ठीक और सफिशिएंट वो मैसेज हो, वो आपने देना है जिसकी अहमियत हो। दैट शुड बी एप्लीकेबल। अब आपने जो मैसेज दिया है वो मैसेज सिर्फ सुनने की हद तक ना हो, काबिल अमल हो और अप्रोप्रिएट एंड टाइमली। जैसे आजकल कोरोना वायरस के बारे में मैसेज दिया जा रहा है, अब वो इन हालात पे काबिल अमल भी हो और इस माहौल के मुताबिक अप्रोप्रिएट, अट्रैक्टिव और टाइमली। लोगों को उस लोग कहें कि हाँ जी ये कोई मैसेज है। अट्रैक्टिंग और अपीलिंग इन अकॉर्डेंस विद द laid down objective, in tune with the mental and socio-economic level of the audience, and that message must be practical. Communication should involve as many sense organs as possible. आप मुंह से बोल रहे हैं, आंखों के इशारों से जवाब दे रहे हैं, आपके हाथ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपका स्टाइल है, आप तमाम जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन शुड बी टू वे। आप सिर्फ अपनी ना सुनाएं, आप उनकी तरफ भी सुने। समटाइम्स आप उनकी एंजाइटी बता देंगी कि पेशेंट या ऑडियंस जो है वो आपकी तरफ मुतवज्जो नहीं, बोर हो रहा है, देन यू कैन चेंज योर स्टाइल, थोड़ा सा आप चेंज करें। डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव। खाली आप एक कमरे में बैठ के माइक लगा के लेक्चर में आप देंगे तो दैट इज नॉट इफेक्टिव। आप लाइव कम्युनिकेट करेंगे तो दैट विल बी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी। Education and training methodology. Every doctor has act as an educator and trainer. When then as a faculty member in a medical college, trained in a training institution, lecturer in front of a group of laymen, administrator responsible for human resources development of his subordinates, physician to his patients, or even a parent educating his child. Everybody is doing this job. Everybody is educating others.
everybody is giving training to others. So this depend upon कि आप किन को ट्रेनिंग दे रहे हैं. आप अपनी औलाद को भी बाज़ का ट्रेनिंग देते हैं, आप अपने मिलने वालों को भी ट्रेनिंग देते हैं, इसी तरह मुअल्लिम अपने स्टूडेंट्स को देता है, इसी तरह इमाम मस्जिद नमाजियों को एजुकेट करता है. Hence it is essential for a doctor to have elementary knowledge of education and training methodology. क्या क्या है जी? सिस्टम अप्रोच नंबर 1. इसमें क्या होता है? ट्रेनिंग नीड असेसमेंट. ट्रेनिंग नीड असेसमेंट आपने जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आप उसको असेस करें, बगैर उसके कोई फ़ायदा नहीं. फार्मूलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. आप पहले बैठ के ऑब्जेक्टिव्स तय करें कि आपने इस ट्रेनिंग से आपने क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करें. क्यूरिकुलम डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. आप कम्युनिटी मेडिसिन का सपोज आप कोर्स है, आपने डिज़ाइन किया, आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड फोर्थ इज टीचिंग मेथड्स, डिफरेंट स्टाइल्स, वर्बल, नॉन वर्बल, ऑडियो विजुअल, आर ट्यूटोरियल, आर जस्ट फील्ड विजिट एटसेट्रा. फॉर्मल प्रेजेंटेशन मेथड्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लेक्चर which I am delivering you, and dialogue. Symposium. Dialogue is between two persons or more than two persons. Symposium, when audience are sitting and lecturer is debating about one topic. Panel discussion, all experts are sitting in front of you and replying to different questions. Colloquium, there are experts and students and one man is conducting this workshop. Group methods, for focus group discussion, जिसमें आप बैठ के ग्रुप की शक्ल में, मिसाल के तौर पे आपकी क्लास को 20-20 ग्रुप में कर दें कि ये 20 ग्रुप डिस्कस करके आके फिर वो अपना अपना व्यू दें. कंडक्शन ऑफ दी ग्रुप फोकस ग्रुप डिस्कशन, फिर उसके बाद उनके एंड रिजल्ट में तमाम ग्रुप्स के आपने क्या क्या इससे हासिल किया. आप बस ग्रुप आर सेशन, जिसमें तमाम लोग ग्रुप्स को शामिल करके फिर उसके बाद वर्कशॉप, जिसमें आपने स्टूडेंट्स को ग्रुप में बैठा के कहा कि आप ये प्रैक्टिकल करें. कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार, जिसमें आप एक टॉपिक जो है उसके तमाम एस्पेक्ट्स जो है उसको डिस्कस करें. रोल प्ले, जब आप प्रैक्टिकली एक बंदे को कहते हैं कि डेमोस्ट्रेटर बन के आप फ्रंट पे आए, या कोई भी किसी भी तरीके से डेमोस्ट्रेशन. Demonstration when junior doctors are giving you demonstration in group. केस मेथड, जब आप एक केस को सामने ला के, जैसे आप मेडिकल या सर्जरी में आप डिस्कस करेंगे. एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी. कम्युनिकेशन skills. A mention was made earlier about direct and indirect communication skills. The direct communication skills are absolutely essential for a doctor in order to be an effective teacher, trainer, or health educator. The more important skills are briefly described below. Eye contact. आप जब लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो आपको पूरा जो स्टूडेंट्स की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, आपको उनको वॉच करना चाहिए. बॉडी लैंग्वेज, आपने इधर इधर उधर मूव करना है. स्पीच दैट शुड बी ब्रीफ एंड कंसाइज. क्वेश्चन आंसर, आप री इन्फोर्समेंट करें कि आप उनको उनके बाद में उनको फीडबैक ले, तमाम चीज़ें पूछें. क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एड्स, जैसे मैंने पहले बताया, ऑडियो एड्स, मेगाफोन, आप जस्ट मेगाफोन पे आप डायरेक्ट बात. माइक्रोफोन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स, आप ये जो आजकल यूज़ करते हैं डिवाइसेस. ग्रामोफोन, जिसमें आप बहुत पुराना लगा के आप वो डॉग्स वाला सोते थे. टेप रिकॉर्डर, अब तो वैसे मसरूफ़ हो गया है क्योंकि अब तो बहुत सी नई डिवाइसेस आ गई. रेडियो स्टिल इफेक्टिव इन ओल्ड एरियाज. अनप्रोजेक्टेड ब्लैक बोर्ड, यू आर सीइंग दिस पिक्चर्स, तस्वीरों की शक्ल में आप कार्टून की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं, फोटोग्राफ्स की शक्ल में आप प्रेजेंट करते हैं. पोस्टर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स
एंड मैप्स की शक्ल में आप पेश करते हैं। फ्लैश कार्ड्स, ये मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ। Yes, that has come back. Flashcards. This is the picture of the flashcards. आप कार्ड के ऊपर तमाम चीजें लिख के बता दें। Flannel boards. This is the picture of the flannel board. Principal materials, printed materials, books, booklets, pamphlets, folders, etc. Three-dimension aids, actually specimens and models. A PDF scope, ये मैं इसकी भी आपको पिक्चर दिखाता हूँ। This is the PDF scope. Transparencies, again, this is the transparency. This is the transparency and projector just on the front of it. Projection slides. This is the projection slides. आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है तो आप मूव करते जाते हैं उसको। फिल्म स्ट्रिप, and audiovisual aids, television, video, tape slides, cinema film, etc. Traditional media, puppet, Grubbs puppet, folk songs, ये तो आपने बेशुमार दफा सुने होंगे। Folk dances and drama. Education aids, evaluation is a systematic process to assess how much of the predominantly predetermined objective of plan has been achieved. Planning of the health education. I think ये अब इसको next उसमें कर देना चाहिए। Thank you very much, my dear students. This is the maximum I have. मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको जो कुछ भी बता सकता हूँ बताऊँ। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो kindly put all questions on my email ID. I will respond to you. Thank you very much. Again, listening me patiently.